Hmm. Hello students, today we will continue the exercise of chapter number 2, structure of atom, and we have solved 8 questions of the chapter. So today let's move toward the question number 9. A photon of wavelength 4 multiply 10 to the power minus 7. Before the question, I want to explain a new concept, that is photoelectric effect. Photoelectric effect, and that is when a light beam strikes to a metal surface, then electron releases from the metal surface, and there is no time lag between the incidence of light and the ejection of electron. So these metals are whose ionization enthalpy is low. Ionization enthalpy is low. So if the energy of photon which strikes the metal surface h nu is h nu, then the work function, some work function W is equal to h nu, which is the minimum energy, which is the minimum intensity, or which is the minimum energy of photon to strike the metal surface and to eject an electron. If you want to eject an electron with minimum energy, then the sufficient minimum energy is called work function. And here we have nu zero, the frequency nu zero means it is the minimum frequency to eject an electron from the metal surface. That is the energy will be denoted by W, and it will be h nu zero. Suppose we have given h nu energy. Suppose a quantum of h nu energy strike the metal surface, then minimum energy required to eject an electron, suppose that is a work function. ये कुछ एनर्जी था जिसने हिट किया, उसमें से कुछ एनर्जी क्या हुआ, यूज वर्क टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एंड द रेस्ट ऑफ एनर्जी will be converted into kinetic energy of the electron. So on this basis we will solve the questions, and that is question number 9. A photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes the metal surface. The work function of the metal being 2.13 electron volt. Work function W 2.13 electron volt, or we can say it is h nu zero. So calculate the energy of photon. First of all, energy of photon. Second, the kinetic energy of emission, and the velocity of photon. चलिए, the energy of photon, energy of photon is h nu, Planck constant and frequency, and Planck frequency is converted into hc upon lambda. Lambda is given, that is, so put the value of Planck and speed of light minus 634, sorry, it is 34 a joule second, multiply 3 into 10 to the power 8 meter per second, and 4 into 10 to the power minus 7 meter. So meter cancel, SS cancel second, and the energy of photon will be 19.8 multiply 34 and 8, it will be 10 to the power minus 26 upon 4 multiply 10 to the power minus 7. So it will become 4 and 0.9 and 5.
4.95 into 10 to the power minus 19 minus 19. So it is the energy of photon which strikes the metal surface, which strikes the metal surface. चलिए next one, you can take the screenshot of this. Next one, second, the kinetic energy of the emission. Kinetic energy of the emission कितना होगा, चेक कर लेते हैं. The kinetic energy of emission has been a work function plus kinetic energy equals to the total energy of photon, total energy of photon, and that is h nu 0 plus energy, kinetic energy of emission, and that is h nu. So we have the value h nu and h nu 0 both. So the kinetic energy will become h nu minus h nu 0, and h nu we have calculated 4.95 multiplied 10 to the power minus 19 minus h nu 0 is 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल बाय मल्टीप्लाइंग charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19, and it becomes in joule. So 4.9 into 95 into 10 to the power minus 19 minus 8, that is 3.408 into 10 to the power minus 19. So let's take the common 10 to the power minus 19 and 4.950 minus 3.408. It will become 1.542 into 10 to the power minus 19 joule kinetic energy. Kinetic energy. Or we can convert it into the electron volt. The answer is given in electron volt, and we have to divide it by 1.6 into 10 to the power minus 19. आप इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, इसको आप खुद कर लेंगे. चलिए, the third part of the question, the velocity of the photoelectron, velocity of photoelectron. चलिए चेक करते हैं. फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी आप चेक करेंगे. वेलोसिटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन will be 6.2. चलिए चेक कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू potential energy. Kinetic energy is 2.18. Sorry, kinetic energy will be 13.6 into z square upon n square. Z square upon n square. But it is in the case of hydrogen. Kinetic energy is equal to half mv square, and we have to calculate the velocity. So v square is equal to 2 ke upon n, and that is 2 multiply kinetic energy
it is 0.98 electron volt and divided by m, and m of electron will be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, minus 31 kg mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इससे जो आप कैलकुलेट करके टर्म आएगा दैट विल बी द आंसर। आपको उसका अंडररूट करना पड़ेगा एक बार, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer, 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom। ठीक है, calculate the ionization enthalpy energy of sodium in kilojoule per mole। चलिए, तो ionization enthalpy of electron must be the energy of electron, must be the energy of electron, and that is E is equal to h nu, where h c upon lambda 6.6 into 10 to the power minus 34, 3 multiply 10 to the power 8 joule second and meter per second, divided by 242 nanometer multiply 10 to the power minus 9 meter। So meter meter cancel, second second cancel, the energy will be 19.8 into 10 to the power minus 26 divided by 242 multiply 10 to the power minus 9, and it will become 10 to the power minus 10 to the power minus 6 and 3 minus 17 and 19.8 divided by 242. By calculating this you will get, by calculating this you will get 8.1 into 10 to the power minus 22, 8.1 into 10 to the power minus 22 joule, but it is kilojoule, किलोजूल में आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 से डिवाइड जब करेंगे तो अब ये जूल है, और जूल के बाद किलोजूल बनाने के लिए 10 टू द पावर 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। सो इट विल बिकम किलोजूल, बट फॉर पर मोल क्या करना पड़ेगा, फॉर पर मोल हर एक मोल के लिए, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई एवोगाड्रो नंबर, एंड दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23. So it now become kilojoule per mole, kilojoule per mole। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, that is a 25 watt bulb, energy 25 watt, or it is emits monochromatic yellow light for of wavelength 0.57 micrometer, 0.57 micrometer। So and it is joule per second, joule per second, joule per second, and lambda is given 0.57 micrometer, or we can write 0.57 into 10 to the power 6 meter, 10 to the power minus 6 meter, 10 to the power minus 6 meter माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए
the energy of one quanta, and that is E dash h nu or hc upon lambda. So the hc, the value of hc is 19.8 into 10 to the power minus 26 and divided by lambda, that is 0.57 multiplied 10 to the power minus 6. So it will become 198 divided by 570 multiplied 10 to the power minus 20, or we can write it as 19857 and 10 above 10 to the power minus 21. So it will become 3.4. It will become 3.4 into 10 to the power minus 21. 3.4 into 10 to the power minus 21. 3.4 into 10 to the power minus 21 joule. Eight, 26, 26 यहाँ कुछ गड़बड़ है. 19.8 26 आ गया, 20 हुआ और 198. ये गड़बड़ हुआ है. ये जीरो यहाँ रहेगा, ये जीरो यहाँ रहेगा और ये होगा 10 टू द पावर माइनस 19, और जैसे ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 19, तो अब इसको करेंगे हम 34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 20. ये हमारा एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन आया, और टोटल एनर्जी कितना एमिटेड है 25 जूल, और हमारे पास एक क्वांटम का एनर्जी है 34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 20 जूल. तो हमको यहाँ नंबर ऑफ फोटोन चेक करने हैं पर सेकेंड, और हम चेक कर लेंगे क्योंकि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है हमारा 25 जूल, और एक क्वांटम का एनर्जी है हमारा इतना गिवन 34 10 टू द पावर माइनस 20. सो द टोटल फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, फोटोन और क्वांटा बोल सकते हैं, फोटोन दैट विल बी 25 डिवाइड बाई 34 into 10 to the power minus 20. It will become 25 upon 34 10 to the power 20, or it will be 0.7 0.71 multiply 10 to the power 20, or we can say 7.1 into 10 to the power 19 quanta per second. Quanta per second. चलिए, so the next question is question number 12, that is electrons are emitted with zero velocity from a metal surface. You can take the screenshot of this. Question number 12, and that is electrons are emitted with zero velocity. Zero velocity means it has no kinetic energy, and zero velocity means the total energy is given to eject an electron. means ejection के जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ लाइट का E = h nu, वही उसका वर्क फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी इस बार जीरो है. When it is exposed to the radiation of wavelength this, wavelength होता है lambda
6800 angstrom, or we can write it 6800 multiply 10 to the power minus 10 meter, or 68 multiply 10 to the power minus 8 meter. Calculate the threshold frequency and work function. So first of all we will calculate the work function. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आई थी लाइट की, जो एनर्जी था वो था हमारे पास एच न्यू, और इन दिस केस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, सो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू जीरो, एच न्यू जीरो, एंड एच न्यू जीरो विल बी एच सी अपॉन लैम्डा जीरो. सो एच से एच कैंसिल, सो न्यू जीरो to c upon lambda 0, c 3 into 10 to the power 8 meter per second, and lambda is 68 multiplied 10 to the power minus 8 meter. So frequency will be in per second, and that is 3 upon 68 multiplied 10 to the power 16 second inverse. और यहाँ पर हम इसको कर लें 300 डिवाइड बाई 68 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 40. इसको कैलकुलेट जब करेंगे 68 से तो ये क्या बनेगा देख लेते हैं. (68) 300 divided by 68, and that will be 4 times 32 3 272, and it will be 8 to 28.0 ठीक है. 4.4, it is 4.4 into 10 to the power 40 second inverse, जो फ्रीक्वेंसी इसका है. फ्रीक्वेंसी चलिए आपका एनर्जी निकालते हैं. वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन दैट इज एच न्यू जीरो. न्यू जीरो हमने निकाल लिया है, एच हमें पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर minus 34 जूल पर सेकेंड, एंड जूल सेकेंड, एंड न्यू जीरो इज 4.4 into 10 to the power 40 per second. Second cancel, so it will 6.6 multiply 4.4 multiply 10 to the power minus 34 and 14. It will be 10 to the power minus 20. 10 to the power minus 20, and the answer will be 2.91. Okay, 29.1 into 10 to the power minus 20, or 2.91 into 10 to the power minus 19 joule. That is the work function. Work function. Work function. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 अभी छोड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 14. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनस एच एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n5, यानी कि फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ आता है? अच्छा, फिफ्थ शेल में है. चलो फिफ्थ शेल में है, अभी करते हैं इसका एनर्जी कैलकुलेट. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. सो द एनर्जी ऑफ nth शेल हमें पता होना चाहिए. एनर्जी ऑफ nth शेल हमें बताया था -13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला था nth शेल का, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जेड है आपका एटॉमिक नंबर, एन है नंबर ऑफ शेल. सो द ई फिफ्थ शेल का -13.6
6 और ये हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम दिया है, सो 1 स्क्वायर और n शेल नंबर है 5, तो 5 स्क्वायर, सो इट विल बी -13.6 अपॉन 25। या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दें, या फिर इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना ही है तो 13.6 मल्टीप्लाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई करें और जूल में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाई 25। तो ये अब जूल में आ गया आपका आंसर, ये आ गया जूल में। फिफ्थ शेल का एनर्जी आपका ये आ गया। चलिए फिफ्थ शेल का एनर्जी आ गया। कंपेयर करना है आंसर को किससे, फर्स्ट शेल में अगर हमारा प्रेजेंट होता है, अगर ये होता है फर्स्ट शेल में प्रेजेंट, इसका जो वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 25 ये आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं 218 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 हमने लिख दिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 25 से इसको डिवाइड करना इजी हो जाएगा 218 को, और ये आएगा 8.74 72 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 जूल। ये आपका फिफ्थ शेल का एनर्जी था। अगर हमको यहीं पर फर्स्ट शेल का एनर्जी कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट शेल का कर लेते हैं -13.6 मल्टीप्लाई z स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, और ये था भी इसमें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो इसको क्या करेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल ये आता है। तो फर्स्ट सेल का एनर्जी जो था हमारा ये था, और फिफ्थ सेल का एनर्जी है ये। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कितना ज़्यादा है कितना कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए फॉर्मूला लिख लें, नंबर ऑफ लाइंस। अगर नंबर ऑफ लाइंस हमें चेक करना हो, सपोज ये हमारा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, और हमें किस सीरीज का करना है। अगर फर्स्ट, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। नंबर ऑफ लाइन ऑफ एमिशन, नंबर ऑफ एमिशन लाइन, सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अगर सारी लाइंस फर्स्ट लेवल में आती हैं अपर लेवल से, देन इट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अगर सभी लाइंस, सभी एनर्जी लेवल सेकंड लेवल पर आकर के रुकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड बिफोर देन लाइमन, बिकॉज बामर इज प्रेजेंट इन विजिबल रीजन, पहले देखा गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन, सपोज ये क्वेश्चन दिया इसमें, व्हाट इज द number of emission line when the excited electron of H atom in H6 drop to the ground state. ग्राउंड स्टेट में अगर वो आता है, और कहां से है, कहां से है भैया, वो है 6 से। चलो बना लेते हैं, फॉर्मूला बता देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा n6 है, और ये हमारा n, और बामर बोला इसने कहा है कि बामर नहीं बोला। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ H atom इन N6 ड्रॉप इन द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट है तो ठीक है, ग्राउंड स्टेट है तो n1 है, ग्राउंड स्टेट है तो n1 है, ग्राउंड स्टेट तो बिल्कुल इसका n1 होगा। अब 6 से n1 तक आने में कौन कौन सी लाइन आएंगी, 6 से n1 में आ गया। हो सकता है पहले ये यहाँ आए, फिर ये ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए,
तो 1 2 3 4 5 लाइन तो यही होगी। हो सकता है ये यहाँ आने के बाद फिर एक बार यहाँ आए, फिर एक बार यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, एक लाइन ये काउंटेड है। क्या पता है इससे सिवाय, क्या पता है इससे सिवाय, क्या पता है यहाँ से यहाँ आए। तो इस तरीके से हमको लाइन टोटल चेक करनी होगी और दैट इज मच कंफ्यूजन क्रिएटेड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर ये हमारा n सेकंड मान लें हम हायर लेवल और इसको n1 मान लें, ये तो हमारा ग्राउंड है, ये हमारा एक्साइटेड है, तो यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ लाइन, फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ लाइन हो जाएगा आपका n2 माइनस n1, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 और इसमें एक ऐड कर दो एक्स्ट्रा और डिवाइड बाई 2 कर दो, ये फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। तो चलो n2 क्या हुआ हमारा 6 माइनस 1 और एक आ गया 6 माइनस 1 एंड प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2, ये हमारा बना 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 330 एंड डिवाइड बाई 2 और जो हो जाएगा हमारा 50। तो ऐसी हमें जो एमिशन लाइन मिलेगी टोटल 15 लाइन्स मिलेगी, टोटल कितना मिलेगा 15, ठीक है। ये इस तरीके से हमको देखना है, डायरेक्ट इसको यही फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बस इसमें तो बहुत सारे हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है बस ये, देखते हैं बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर खत्म कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हमको पता है ई फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अभी हमने निकाला है, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो यही आएगा, फर्स्ट सेल एनर्जी इज टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो कितना है, अभी अभी तो कैलकुलेट करा था E5 क्या होता है माइनस 13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर आपको जूल में करना है तो माइनस 13.6 मल्टीप्लाई माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी क्या है, ये आपका जूल में है, और आप इस टर्म का कैलकुलेशन डायरेक्टली याद रखिए, यही आएगा फर्स्ट सेल वाला एनर्जी दैट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो फिफ्थ सेल के लिए आप फिर से वही वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका आ जाएगा, अपने आप आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस 18 जेड 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर होता है आपका 5 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो फिफ्थ सेल के लिए एनर्जी आ जाएगा। इसमें क्या, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स calculate the energy रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो आर एन हमारा क्या होता है 0.52 जेड स्क्वायर अपॉन एन, यही होता ना 0.523 होता है 0.5 एन स्क्वायर अपॉन जेड, उल्टा हो गया एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आता है एंगस्ट्रॉम में, और इसको 5 से 0.57 हो गया बस,
0.57 मल्टीप्लाई n कितना है, फिफ्थ ऑर्बिट बोला तो 25, जेड हमारा 1 है, तो 17 और 1 14.25 एंगस्ट्रॉम। इसको आप जिस किसी भी टर्म में पूछा उसी में आप इसका आंसर दे सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द रेडियस ऑफ बोट फिफ्थ शेल। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, और कल एक हमारा लास्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, उसको डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और कल ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।